اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹائمز، آخر زمان. قرآن شریف کو پڑھنا اور ہر لفظ کو سمجھنا ہم پہ لازم ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو دوران تلاوت یا خوشی و غمی کی محفلوں میں اس طرح بدلا کریں گے، خوبصورت بنایا کریں گے کہ اس سے دولت نواز. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. بے شک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے اس پر اجرت طلب کیا کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ شدید صدمے کا اظہار کیا. ذرا غور فرمائیے کہ صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے. آج ہم اپنے پیاروں اور قریب ترین رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے ان مدارس سے طلبہ کو طلب نہیں کرتے جنہیں عام زندگی میں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس کے لیے ہم اجرت نہیں دیتے، انہیں کبھی رقم یا کبھی دیگوں کے کھانے کی صورت. ایک اور حدیث سے متفق علیہ ہے، یعنی اسے صحیح بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت. گزرے 1400 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور اس میں بابا ہوتی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک خطے، علاقے یا ریاست تک محدود ہوا کرتی ہیں، لیکن گزرے 100 سال کے دوران ہم نے وہ جنگیں دیکھی جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. جنگ عظیم اول کے دوران 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے، جبکہ دوسری عالمی جنگ کے دوران یہ تعداد 5 کروڑ سے بڑھ گئی. اس کے بعد چین، گواتیمالا، کانگو، کیوبا، ویتنام، لبنان، کشمیر، یوگوسلاویا اور چچنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. لیکن افغانستان، عراق، ایران، لیبیا، شام، مصر، یمن، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بشمول اسرائیل اور یورپ کی موجودہ صورتحال اور پھر جنوبی ایشیا کے ممالک کا تذکرہ بعد میں تفصیل کروں گا کہ وہ آخر الزمان کے حوالے سے کچھ تفصیل چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت خونریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا رزق بنیں گے. ہمارے دور کی جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر حدیث میں اس طرح سے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کثرت سے واقع ہوگی. ناگہانی اچانک اموات، یعنی اچانک دل کا دورہ، حرکت قلب بند ہو جانا، دماغ کی شریان پھٹ جانا یا پھر کوئی حادثہ. پہلے زمانوں میں انسان عموماً ایک مخصوص مدت کے بعد کمزوری اور پھر بیماریوں کا شکار ہوا کرتے تھے اور پھر اپنی زندگی کے اختتام کی خود تیاریاں شروع کرتے تھے. زیادہ تر معاملات میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرض الموت ہے. اہل و عیال یا کاروبار سے متعلق اہم فیصلے، وصیت، عبادات کی طرف رغبت اور اپنے گناہوں کی مغفرت، زندگی میں کیے گئے جو بھی غلط کیا ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش، اگر کسی کا قرض ہے تو حساب چکتا کرنے کی آرزو، بچوں کی شادیاں، تعلیم وغیرہ سے فراغت کی جستجو، پھر اہل خانہ کو الوداع کہہ کے کلمہ توحید کے ورد کے ساتھ دنیا سے رخت سفر باندھنے کی تیاری. زیادہ تر زندگی کا خاتمہ اسی طرح ہوا کرتا تھا. لیکن اب ایک اچھا خاصا انسان بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور اچانک اس کے انتقال کی خبر سنتے ہیں. یہ قیامت کی علامات متوسطہ میں سے ایک ہے، یعنی وہ جو 1400 سال پہلے بیان ہوا اس وقت ہمارے گرد ہو رہا ہے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. خوش آمدید. جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ربیع العالی اور
حضر الموت کے علاقوں کے درمیان ایک خلاف نامی علاقہ ہے۔ خلاف کے لفظی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ 6500 سال قبل مسیح یہاں قدیم قبیلہ عاد آباد تھا۔ تاریخ عرب انہیں عرب بائدہ یعنی مٹ جانے والے عربوں کے عنوان سے یاد رکھتی ہے۔ یہ شاندار تمدن رکھتی قوم تھی اور اسے قرآن میں من بعد نوح قوم کہہ کے یاد کیا گیا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم۔ یہ علاقہ جو آج ایک وسیع اور ویران ریگستان ہے اور جس کے اندر داخل ہونے سے ہی لوگ گھبراتے ہیں، ہزاروں سال پہلے یہ ایک سرسبز و شاداب زمین ہوا کرتی تھی جس کے مرد تنومند اور قوی ہیکل ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے، کیونکہ جب طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نوید ملی کہ اے نوح کشتی سے باہر آ جاؤ، تو آپ کی عمر 600 سال ہو چکی تھی۔ 1500 دن کے بعد آپ اپنے ساتھیوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ خشکی پہ اترے اور زمین کو دوبارہ بسانے کا خیال آیا تو دنیا کے 3 حصوں کو اپنے 3 بیٹوں کے حوالے اس طرح کیا کہ بیٹے خام کو دریا نیل کا علاقہ، بیٹے یافت کو دریائے میسون، جبکہ بیٹے سام کو زمین کا وسطی علاقہ دے دیا، جن کی اولادوں کو بعد میں تمام اقوام پہ غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے 450 سال بعد سام کی نسل سے قوم عاد نے جنم لیا۔ روح زمین پر ایسی کوئی قداور قوم پیدا نہ ہوئی اور پھر یہ طاقت کے نشے میں مست گناہوں اور بدکاریوں کی تمام حدود عبور کرتے چلے گئے۔ غرور سے ان کی گردنیں اکڑ گئیں اور انہیں ناز تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، اور تبھی ایسا گھمنڈ کہ رفتہ رفتہ یہ بھولتے چلے گئے کہ اسی گمراہی کے سبب تو قوم نوح پہ عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس طرح کے تمام دروازے جب بند ہو گئے اور پوری قومی گناہوں کی دلدل میں دھنسنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا ذمہ سونپا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عاد بن ارم کے گھرانے سے نسبت رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے۔ طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے حتار کے نام سے ایک بت بھی بنا رکھا تھا اور روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کے قوم کے دراز طاقتور لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پیغمبر ہود علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم مزید سننا نہیں چاہتے، اگر تم اپنے قول میں اتنا ہی سچے ہو تو جلد عذاب لے کے آ جاؤ تاکہ ہمارا تمہارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر قانون جزا سے پہلے شدید خوش سالی نے علاقے میں ڈیرا ڈالا۔ ہود علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی کہ اب بھی اگر ایمان لے آئے تو شاید بچ جاؤ، لیکن قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، چنانچہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک تیرا رب ہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایک تیز آندھی چلی جس کا عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا۔ ہوا کے تیز اور تند طوفان نے قوم عاد کو تہوبالا کر کے اس طرح اٹھا کے پٹخا کہ ان کے جسم ریزہ ریزہ اور ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ طاقت خیز آندھی ایسی تھی کہ انسانوں کو پہلے فضا میں بلند کرتی اور پھر اوندے منہ پٹک دیتی، اور پھر کبھی ہیکل انسان اس طرح بے حس و حرکت پڑے تھے جس طرح طوفانوں کے بعد تنا ہوا درخت بے جاں ہو کے گر جاتا ہے۔ قوم ہود کے اس واقعے کا تذکرہ عربی زبان کے ایک محاورے میں بھی ملتا ہے کہ عہد رسالت میں جب کسی نمائندے کو عام مقصد کے لیے بھیجا جاتا تو کہتے کہ عاد کی طرح نہ بن جانا، یعنی عیش و عشرت میں ڈوب کے اپنا مقصد نہ بھول جانا۔ مفسرین ہلاک شدگان کی تعداد 4000 بیان کرتے ہیں۔ اہل عرب ہود علیہ السلام کی وفات اور قبر کے حوالے سے مختلف دعوے کرتے ہیں۔ بیشتر کے نزدیک وہ قوم عاد کے مارے جانے کے بعد حضر الموت کے شہروں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برود کے قریب حضر الموت کے مشرقی حصے ایک شہر تمیم سے تقریباً 2 مرحلے پہ ان کی تدفین ہوئی، جبکہ کچھ کے نزدیک ہود علیہ السلام فلسطین کے مقام جبریش یا پھر عراق کے شہر نجف۔ اور علامہ حبلی رحمت اللہ علیہ سیرت الحبلیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کی قبریں مسجد الحرام میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि आयशा, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कौम के लोग यानी अरब जल्द ही मुझसे मिलेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि फिर उस वक्त या उसके बाद के लोगों का क्या हाल होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बगैर परों वाली टिड्डी की तरह होंगे, ताकतवर कमजोर को खा जाएगा, हत्ता कि उन पर कयामत नाम हो जाएगी। गोया सिर्फ अलामत कयामत में ही दौलत और ताकत का नशा नहीं, क्योंकि ये अजाब तो पहले भी कौम हूद समेत दीगर अक़वाम पे नाजिल हुआ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा दौर की यूं भी खबर दी कि मुसाफतें कम हो जाएंगी, शहरों और ममालिक का दरमियानी फासला कम होगा और एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचना आसान हो जाएगा, ख्वाह फासला कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। फितने ना फैल जाएं, झूठ की कसरत ना हो और बाजार करीब ना हो जाए। फिर अंजील के अहदनामा कदीम की किताब दानियाल के 12वें बाब की आयत 3 और 4 के तर्जुमे के मुताबिक दानिशमंद रहनुमा आसमान की तमाम रोशनी के साथ मुनव्वर होंगे और जिन्होंने बहुत से लोगों को हक का रास्ता दिखाया होगा वो आसमान के सितारों के मानित चमकेंगे। उसने यानी फरिश्ते ने मुझसे कहा कि दानियाल, अब तुम अपनी बातें बंद करो और किताब को कयामत तक के लिए सरबमोर कर दो। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे और इल्म की कसरत होगी। यहां यह भी अर्ज करता चलूं कि बाइबल के किंग जेम्स वर्जन में इल्म की कसरत के अल्फाज की बजाय ये इबारत यूं है कि इस दौरान बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और वो अपनी कोशिशों को जाया करेंगे। अंजील के बरस जहां कयामत से पहले इल्म की कसरत का जिक्र है, एक हदीस मुतफक्का है यानी मुस्लिम और बुखारी दोनों की रवायत के मुताबिक क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। बज़ाहिर यहां दोनों बयानात दोनों किताबों में इख्तिलाफ नजर आता है, लेकिन मेरी नजर में इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि हम जिस दौर में जिंदा रहते हैं उसे इल्मी सैलाब का दौर कहा गया है, ख़ुसूसन कंप्यूटर की इजाद के बाद मालूमात का जमाना। मैंने यहां मालूमात या इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इल्म या नॉलेज का नहीं। इल्म और मालूमात यानी इल्म और नॉलेज में बड़ा फर्क है। आज का मीडिया आपको खबरों की सूरत मालूमात तो फराहम करता है जिसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, और खबरों के सैलाब में इंसान बिल्कुल बेबस नजर आता है। चंद साल पहले लंदन में एक सेमिनार का उन्वान था इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जिसमें बताया गया था कि पूरी इंसानी तारीख में जितने भी साइंसदान किसी भी दौर में पैदा हुए उनकी मजमूई तादाद से ज्यादा इस वक्त जिंदा है, और वो साइंस की मालूमात में 8 से 10,000 सफ़ात फी मिनट के हिसाब से इजाफा कर रहे हैं, यानी 60 करोड़ सफ़ात के बराबर तहरीरी मवाद यौमिया, और इसमें से अक्सर इंटरनेट पे भी जारी हो रहा है। आज दुनिया की आबादी 7 अरब है और उसमें से 2.9 अरब आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। 2004 में मुतारफ हुई फेसबुक की मार्केट वैल्यू इस वक्त 212 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसके जरिए हर रोज तकरीबन 890 मिलियन इंसान एक दूसरे से राब्ता करते हैं, जबकि ट्विटर को, जो कि चंद साल पहले यानी 2006 में ही मुतारिफ हुआ, आज 500 मिलियन लोगों से ज्यादा बाहमी राब्ते का वो सबब है। 1970 में जब अमेरिकन खलाई जहाज अपोलो 13 खला में कहीं गुम हो गया तो अमेरिकन खलाई इदारे नासा को उसे तलाश करने में 90 मिनट लगे, और आज उनके तज्जियाकार कहते हैं कि अगर हम कागज कलम उठा के उन मालूमात को तहरीर करने की कोशिश करें तो हमें उसमें 10 साल लगेंगे। चुनाचे इस दौर में हदीस मुबारका के वो अल्फाज के इल्म उठा लिया जाएगा, बात समझ में आती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये मालूमात का सैलाब है, इल्म का नहीं। कभी एक मामूली सी सुई पे नजर रखते करिश्मों की मौजूदगी में आए दिन बड़े बड़े मुसाफिर तैयारे गायब हो रहे हैं, नामालूम वजूहात की बुनियाद पे क्रैश हो रहे हैं, और मालूमात का ये सैलाब उस इल्म को भी भाग के ले गया है जो इंसान के लिए दुनिया में हयात तैयबा और आखिरत में दायमी ज़ाब्ते का पैगाम था। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कि इस अफरीद से पूछिए कि क्या उसने आम इंसान को पहले से बेहतर बना दिया है? क्या हमें इस कायनात के खालिक के बारे में पहले से कुछ ज्यादा मालूमात फराहम हो गई हैं? क्या पढ़ने लिखने और डिग्रियां हासिल करने से हमारी जहालत खत्म हो गई है? हम बाखबर तो बन गए, लेकिन क्या आलिम भी बन गए? क्या रिश्तों का तकद्दुस भी बेहतर हो सका? और क्या मुखलिस और दयानतदार इंसानों की तादाद दुनिया में ज्यादा हो गई? क्या कत्ल और गारत में कुछ कमी वाक़ई हुई है?
और क्या भूख और अफलास खत्म हो गई? चुनाचे हदीस मुबारका के मुताबिक जिस इल्म के उठ जाने की खबर दी गई है वो कुरान और सुन्नत के अलावा कुछ नहीं। यानी मुझे ये तो खबर हो कि समुद्र में कितनी मछलियां तैरती हैं, या जंगलों में कितने शेर और चीते घूम रहे हैं, या फिर आज की दुनिया के किस इलाके में तलुए या गरूब आफ्ताब का क्या वक्त है, लेकिन ये खबर ना हो कि मेरी अपनी जिंदगी का मकसद क्या है और खालिक कायनात ने मुझे इस दुनिया में भेजा क्यों था। और मेरे लिए तमाम मालूमात, ये तमाम खबरें फिर वबाल जान। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की बेहतरीन महंगी तरीन डिग्रियां मेरे लिए बेकार होंगी। जैसा कि पहले हदीस में बयान कर चुका कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के उठाए जाने के बाद हर तरफ कत्ल और गारत की खबर दी। गर्ज ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौजूदात जो आपके वसाल के बाद सदियों बाद जाहिर हो रहे हैं और आइंदा के भी जिनके बारे में आप खबर दे गए, बिलाशुबा एक एक करके सामने आ रहे हैं और आइंदा नस्लों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और हक्कानियत की मिसाल है। ये सब वो अलामातें मुतवस्सिता हैं जो जाहिर हो रही हैं लेकिन अभी अपने इंतहा को नहीं पहुंची, लेकिन उनकी रफ्तार में हर रोज इजाफा हो रहा है और तेजी आ रही है और होती चली जाएगी, यहां तक कि तीसरी किस्म की अलामात जाहिर ना हो जाएं। मसलन सही बुखारी की वो हदीस जिसका तस्करा मैं एक वक्फे के बाद करूंगा। खुशामदीद, गौर फरमाइए। सही बुखारी के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मामलात नाअहल लोगों के हवाले होने लगे तो कयामत का इंतजार करो। खुदगर्जी और लालच माशरे में आम होंगे, रिश्वत तहाइफ की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मजीद अलामात कुछ यूं बयां होती हैं कि अहले मस्जिद आपस में लड़ेंगे और वहां कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। और फिर वो सही हदीस जिसे तिबरानी ने अबू उमय्या अजमी से रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की अलामतों में से एक कम उम्र लोगों के यहां इल्म की तलाश है। इस हदीस का मफहूम यह है कि उन लोगों से दीनी मसाइल पूछे जाएंगे जिनको इल्म पे कुदरत नहीं और जो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी भटकाएंगे। और फिर यह भी फरमाया कि अहमक शाम से मजलिस में बैठा करेंगे। एक और सही हदीस में हजरत अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में लोग कबूतर के बोटे की तरह स्याह खिजाब लगाया करेंगे और वो जन्नत की खुशबू ना सूंघ पाएंगे। मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारा करेंगी। बुखारी में ही इब्न मालिक अशरी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रवायत है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ना फैल जाएगा, मर्द कम और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। आप में से अक्सर ने बहरे मुर्दार या डेड सी का नाम सुना होगा और मुमकिन है उस इलाके में कुछ लोगों ने सफर भी किया हो। यह दरअसल एक नमक की झील है जो मशरिक में उर्दन और मगरिब में इजराइल के साथ वजूद रखती है। इसका पानी 34% नमकीन, यानी दुनिया के किसी भी समंदर, दरिया या झील से ज्यादा नमक रखता है। इसलिए इस पानी में जिंदगी नामुमकिन, ना कोई मछली और ना कोई और समंदरी मखलूक वहां रह सकती है। ये पानी उनके लिए जहर है, इसीलिए उसे बहरे मुर्दार या अरबी में बहरुल मय्यत भी कहते हैं। इस झील के जनूब में वो इलाका है जहां एक दौर में सादोन और आमूरा समेत 5 बस्तियां थी। अंजील के मुताबिक यहां आबाद कौम सदून को अपना सदर मकाम करार देती थी। ये तमाम इलाका जहां बहर मुर्दार नजर आता है, यहां वो बस्तियां आबाद थी जिन्हें जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक 2000 साल कबल मसीह एक भयानक ज़लज़ले ने आके तमाम इलाके के साथ मिल गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 72 मकामात पे आया। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जनूबी इराक से हिजरत की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम दोनों का असल वतन इराक के शहर बसरा के नजदीक बाबल की वो बस्ती थी जिसका जिक्र सूरह बकरा में आया। हिजरत के वक्त लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके साथ थी और ये खानदान जब मिस्र पहुंचा तो वहां चरवाहे बादशाहों का दौर था। हालात नासाजगार हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की जानिब निकल गए और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम सदून की वादी की तरफ चले गए जहां के बाशिंदे अगलाम बाजी समेत दीगर बदतरीन गुनाहों में इस तरह मुब्तला थे कि इस फेल का नाम ही सदूमियत या सोडोमी पड़ गया।
चुनांचे लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस बदफेली से मना करते हुए इस तरह आवाज फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने ना की थी। तुम तो औरतें छोड़ के मर्दों के पास जाते हो, तुम तो हद से गुजर गए। लूत अलैहिस्सलाम के इस पैगाम पर कौम ने उन्हें इंतहाई बेहयाई का मुजाहरा करते बस्ती से ही निकल जाने का कहा, कुरान की जबान में। और उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यह कहना था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब लूत अलैहिस्सलाम ने मजीद तलकीन शुरू की तो कौम गुस्से से भड़क उठी और कहा कि ऐ लूत, अभी नसीहतें बंद करो और अगर सच्चे हो तो फिर वो अजाब लाके दिखाओ जिसका तस्करा तुम करके बार बार हमें डराते हो। अहले सदूम के साथ लूत अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात जारी थे कि अजाब के फरिश्ते दो हसीन और जमील लड़कों की सूरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो कौम ने लूत अलैहिस्सलाम के मकान पे ही चढ़ाई कर दी। कौम दरवाजों पे पत्थर बरसाने लगी कि इन लड़कों को हमारे हवाले करो। और जब दरवाजा टूट गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म से लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत वहां से निकल गए। उनकी बीवी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। और फिर आखिर शब एक बहुत ही हैबतनाक चीख ने अहले सदून को तहोबाला करके पूरी बस्ती का तख्ता उठा के उस पर पत्थरों की बारिश कर दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब एक करीबी इलाके की पहाड़ी से तलुए आफ्ताब के बाद अपनी बस्ती यानी सदूम शहर की तरफ देखा तो वहां हलाकत और बर्बादी के निशानात के अलावा कुछ न था। पत्थरों की बारिश के दौरान हर शख्स पे वो पत्थर गिरा जिस पे उस शख्स का नाम लिखा था और ये पत्थर इस कसरत से बरसे कि पूरी बस्ती उन स्याह जले हुए पत्थरों से ढक गई और ये पत्थर आज भी वहां मौजूद है। कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक यह सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि जमीन पर कोई एक शख्स ऐसा ना रहे जिसकी अल्लाह को जरूरत हो। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि दिन की रोशनी में अलल ऐलान रस्सों पर बदकारी होगी और कोई शख्स उस पर एतराज नहीं करेगा और ना ही उसे हटाने की कोशिश करेगा। उस रोज माशरे का बेहतरीन शख्स वो होगा जो जानी मर्द से कहेगा कि तुमने उसे रस्ते से थोड़ा हटा लिया होता। और यह बात कहने वाले की उस दौर में वही हैसियत होगी जो आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। और फिर सही बुखारी और मुस्लिम में कई जगह यह रवायात भी कि शराब और जना आम होगा। तो फिर जिन गुनाहों की पादाश में कौम लूत बदतरीन अजाब की मुस्तहिक ठहरी, क्या कानून सजा और जजा में तब्दीली मुमकिन है? हरगिज नहीं। एक और अहम पेशगोई जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मोटर गाड़ियों की तरफ था, उसे इब्न अफ़्फ़ान और हाकिम ने इस तरह रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत के कुछ लोग पालानों से मिलते जुलते ज़ेनों पे सवार होकर मसाजिद के दरवाजों पे उतरेंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि आसमानों से आम बारिश तो बरसेगी लेकिन जमीन से कुछ ना उगेगा। वक्त के बारे में फरमाया कि कयामत तब तक कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में ना मिल जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएगा, हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की सूरत जो कि चमक के फौरन बुझ जाती है। यहां यह सवाल आम है कि जब साल में उतने ही दिन है जितने पहले जमानों में होते थे, यानी ईसवी साल में 365.25 और इस्लामी साल में 354.36, यह तादाद तो पहले भी इतनी थी और आइंदा भी इतनी, उतने ही महीनों घंटों दिनों और हफ्तों का हिसाब किताब। तो फिर इस हदीस का मफहूम आखिर क्या है? इस सवाल का एक गैर फलसफियाना लेकिन हकीकत पसंदाना मुख्तसर सा जवाब शायद सिर्फ इतना बनता है कि
वक्त से बरकत उठ जाएगी। बरकत वो शय है कि अगर किसी भी जगह मौजूद हो तो फवाइद कई गुना बढ़ जाते हैं, और अगर ये बरकत वक्त में आ जाए तो थोड़े से वक्त में सदियों का काम हो जाता है। ये बरकत माल में आ जाए तो चंद 100 रुपयों में हजारों का काम निकल आता है। बरकत हो तो एक प्लेट खाना बहुत सौ के लिए काफी, और अगर ना हो तो तमाम दस्तरख्वां भरा होने के बावजूद लोग भूखे रह जाते हैं। मसलन हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 55 साल की उम्र में इतनी तसानीफ छोड़ी कि आज 60 साल की उम्र पाने वाला शख्स उनको पढ़ ही नहीं सकता। उनकी सिर्फ याकूत और हदाया ही 40 जिल्दों पर मुश्तमिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ तो आपको याद ही होगी कि ए अल्लाह, तूने मुझे जो कुछ अता फरमाया उसमें बरकत भी दे। आज दुनिया तारीख की बदतरीन मुफलिसी की लपेट में है। 1.25 अरब इंसान पीने के पानी से महरूम है और हर 6 में से 1 शख्स इस वक्त भूखा है। दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 1% यानी सिर्फ 1% लोग दुनिया की निस्फ फीसद दौलत पे काबिज है, और ये रकम 110 खरब डॉलर से ज्यादा है। गोया सिर्फ 85 अफराद 350 अरब इंसानों से ज्यादा अमीर हैं। फिर क़यामत की वो निशानियां जिनकी खबर एक बड़े वाकई की सूरत हमें दी गई, और वो सरजमीन अरब में रोनुमा होगा। मशरिक़ वुस्ता की गलियों, वादियों, शाहराहों और पहाड़ों पर जारी कत्ल गारत, बेचैनी, अफरा तफरी और मुख्तलिफ गिरोहों का अचानक उभरना, और इस कदर बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा के हुकूमतें गिरती जा रही हैं, सरहदें मिट रही हैं और रियासतें बर्बाद होकर बिखर रही हैं। वहीं फिर उस शख्सियत का भी ज़रूर होना है जिनका नाम गरामी इमाम मेहदी होगा। वो कब, कहां और किस तरह सामने आएंगे, अगली नशिस्त में गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सफा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।